24 ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. 9:45 ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದೆ. 9:30 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು DR ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಐಕ್ಯತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮದು. ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಹಿಲ್ ಅಂತ. ಅವರು ಕೊಡುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರುತ್ಸ್, ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಅನ್ಬೋದ, ಸತ್ಯ. ಈ ದಿವಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು DR ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆದರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ N. ಚೌಕಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಚೌಕಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹಿರಿಯರು, ಸಾಧಕರು. KTFನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. KTF ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರವರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೋಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಈ 3 ದಿವಸ. ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ. ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಈ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ? ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗೋಹಿಲ್, ಬ್ರದರ್ ಗೋಹಿಲ್. ಅವರು ಈ ವಿಕ್ರಮ್ ಲಾಡ್ಜ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು. ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಸತ್ಯಗಳು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ, ಸರ್, ಐ ಹಾರ್ಟಿಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್. ಗೋಹಿಲ್ ಸರ್. ನಿಂತ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತ ಚೇತನವೇ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ಗುಪ್ತ ಪ್ರೇಮವೇ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿಗೆನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇತರರೊಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್,
सभी आत्मीय बंधुओं, आज हमारा विषय जो है व्हाट इज ट्रूथ। इस पर ट्रूथ के ऊपर या सत्य के ऊपर, सत्य क्या है, सत्य के ऊपर सनातन काल से ही चिंतन होता रहा है और जिसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो हमारे जो थियोसॉफी ने एडॉप्ट किया हुआ है, सत्यान नास्ति परो धर्म, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ। इसके बाद में इसमें और भी जो रिजल्ट सामने आए हैं वो उनको देखें। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, देयर इज ओनली वन विदाउट सेकंड। ये सभी रिजल्ट्स हमारे सामने चिंतन के आए हुए हैं। इसके बाद भी आज भी ये प्रश्न उठता है, व्हाट इज ट्रूथ। तो यदि हम इसको थियोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लें, then the answer to this question is not hard and complicated, but it is very easy. The answer to this question, with the point of view of theosophy, the answer is very simple. Now listen, truth is when we find our inner self, our golden core, our open heart of compassion, our deep silence, our serenity of days and nights, our wonder of wonders, the root without roots, joy and bliss, and all that is good, true and beautiful. It is the answer to this question. हिंदी में आपको देखें, जब हम अपने स्वयं के अंतरतम स्व या आत्मा को, अपना स्वर्णिम केंद्र को, अपनी गहनतम नीरवता या शांति को तथा गंभीरतापूर्ण दिन और रातों को, अपने आश्चर्यों के आश्चर्य को और अपने परम सुख, आनंद और वह सभी जो सत्य, शिव और सुंदर है, यही सत्य है। हम सभी वास्तव में उस परमात्मा की एक प्रतिकृति हैं। प्रतिकृति होने से एक हम लोग भी सभी सत्य का ही स्वरूप है। सभी जो यहाँ पर जीव है, प्राणी है, सभी सत्य के स्वरूप है। इसलिए भय को त्याग दो, अनावश्यक दुखों को हटा दो और मुस्कराते रहो। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय भी देखिए, जब सभी लोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सभी सैनिक जब खतरों तथा संभावित मृत्यु का सामना कर रहे थे, सभी मिलकर गाना गाना शुरू कर देते हैं। वो गाते हैं, पैक योर ट्रबल्स इन योर ओल्ड किट बैग एंड स्माइल स्माइल स्माइल, व्हाट इज द यूज ऑफ वरी। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे जब सारे इसका सामना कर रहे थे, सभी जो सैनिक थे वो मिलकर के गाना शुरू कर देते हैं। अपनी सभी कठिनाइयों को, दुखों को, झगड़ों फसादों को अपने पुराने किट बैग में बंद कर दो और मुस्कराओ मुस्कराओ मुस्कराओ, खुशी मनाओ, चिंताओं का क्या प्रयोजन है। तो जब वो इस तरह से उस समय जब कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में भी
हर पर हमेशा मुस्कराते रहने की प्रयोजन ही है। अभी देखिए इसी का थोड़ा सा हम लेते हैं कुछ इंस्टेंसेस हमारे यहाँ पर या वर्ल्ड में देखे सभी में। 2 वर्ष या 3 वर्ष पहले जब कोरोना आया हुआ था, अभी कुछ समय पहले जब कोरोना वायरस फैला था, अनेक लोगों की मृत्यु हो रही थी। उसे जो है हम आध्यात्मिक या अपना थियोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोरोना वायरस या अन्य किसी वायरस के संबंध में अत्यधिक चिंता करने की क्या आवश्यकता है। हम तो शाश्वत ईश्वरीय अस्तित्व हैं, हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। मृत्यु कही जाने वाली किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, यह तो केवल एक चेतना का परिवर्तन है। इसको जैसे कल वो बात चल रही थी एनिमल टेंडेंसी, इसी के लिहाज में एक नाजी पादरी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पुट फियर इनटू पीपल एंड दे विल डू एवरीथिंग यू वांट। उस नाजी पादरी ने कहा था मनुष्यों में भय को भर दो और वह हर चीज करेंगे जो कि आप चाहते हैं। परंतु क्या हम मानवता के नाते ये चीज सोच सकते हैं? हमें तो सोचना है, पर थियोसॉफिस्ट होने के नाते या मानवता के नाते कहा जाए कि हम ऐसा सोच सकते हैं, इसके स्थान पर हमें जीवन को महत्व देना होगा। हम जीवन को महत्व देंगे। विकास एक प्रारंभिक प्रक्रिया है जो एक अनुभव से अन्य दूसरे अनुभव तक ले जाती है। अतः हम अपने भय को साहस और ज्ञान से प्रतिस्थापित कर दें कि हमारा वास्तविक स्व या ट्रू सेल्फ कभी परिवर्तित नहीं होता और ना ही उसकी मृत्यु होती है। जब हम अपरिवर्तनीय और शाश्वत हैं, तो जब मृत्यु के पक्ष में या मृत्यु के दूसरे साइड, अदर साइड ऑफ द डेथ जाते हैं, तो वहाँ पर विश्राम काल है, द टाइम ऑफ रेस्ट। और उसके बाद पुनः इस भौतिक जगत में आगे के पाठ सीखने के लिए अपनी तीर्थ यात्रा पर, पिलग्रिमेज पर सतत रखने के लिए बहुतायत से अपने प्रेमी जनों और मित्रों के साथ पुनः लौटते हैं। अक्सर मनुष्यों का यही समूह एक साथ जन्म लेता है या अवतरित होता है, क्योंकि उन सभी को समान पाठ सीखना होते हैं। हम लोगों को जो एक मृत्यु के बाद जब पुनर्जन्म होता है, तो उसमें सारा का सारा ग्रुप मित्रों का या स्वजनों का मिलकर के सब एक साथ आता है, क्योंकि हमको जो पाठ पढ़ना होते हैं उनके लिए भी वही पाठ सीखना होते हैं और हम लोग सब एक साथ आते हैं और हम एक दूसरे के साथ आवश्यकता अनुसार बाधाएं डालकर या सांत्वना देकर मदद करते हैं। बाधाएं डालकर क्यों? बाधाएं इसलिए डाल दी जाती हैं कि विकास के लिए, उन्नति के लिए बाधाओं को पार करना आवश्यक है। इस कारण से उनकी मदद करने के लिए हम थोड़ी सी बाधाएं डालते हैं, ताकि उसको पार करके उसको वो लेसन सीखते हुए आगे बढ़ सके। मदद करते हैं। कुछ सीखने या विकसित होने और प्रगति करने के लिए बाधाएं अनिवार्य हैं। बहुत कठिन मनुष्य या क्रिटिकल परिस्थितियों में हमारे महान यही चीज़ें हैं जो है हमारे वो टीचर्स होते हैं, यही हमारे शिक्षक होते हैं और गहराई से निंदा या स्तुति, बाधाएं या स्तुति करके हमें अनुग्रहित करते हैं।
कोरोना वायरस भी इसी तरह का लोकतांत्रिक और ज्ञानी शिक्षक है। कोरोना वायरस भी हमको कुछ लेसन्स देता है। वो लेसन्स हैं, हमें वस्तुओं को आपस में बांटने की आवश्यकता का पाठ सिखाता है। सबको इकट्ठा होना है और जो चीज़ें हैं वो बांट करके हम लोगों को कार्य करना है। ये हमको पाठ वो सिखाता है। वही देखिए, जब कोरोना वायरस आया था, सभी लोग मिलकर के उसके लिए मेडिसिन वगैरह तो खोजने लगे और जिन्होंने प्राप्त कर ली वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। यही पाठ पढ़ाना चाहता था। वो सिखाता है, वह हमें अन्य मनुष्य भाइयों की परहितकारिता के रूप में हिफाजत देखरेख करने की प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम मधुमक्खियों को लें, हनी बीज को, वे स्वत्याग का कार्य कर समस्त जीवन की भलाई करती हैं। वो सारी मधुमक्खियाँ जो है हर एक फूल पर जाकर के उसका पराग लेती हैं और वहाँ से आकर के जो मधु बनाती हैं वो सारे विश्व के लिए देती हैं। उसमें उनका कोई भी अपना वो नहीं रहता। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको है। कोरोना वायरस भी उसी तरह से हम लोगों को ये पाठ पढ़ाता है। वह उदाहरण हमें पराजित करने को प्रेरित करता है। मधुमक्खियों की गुनगुनाहट, इस विश्व की गुनगुनाहट या इस पूरे ब्रह्मांड को देखें तो जितने भी इसके उपग्रह वगैरह हैं, तो ये गोलों के संगीत के समान है जो देवी जगत के रहस्यमय पवित्र शब्द ओमकार को प्रतिध्वनित करती है। ओम शब्द से ही इसका ध्वनि निकलती है। वही चीज़ हमको बहुत इनसे मधुमक्खियों से भी या कोई भी हम आवाज़ सुनते हैं पक्षियों की देखें तो उसमें सब में ओमकार की ध्वनि हमको सुनाई देती है। वायरस विशाल संपत्ति तथा कमजोर इन चीज़ों का ध्यान नहीं देता हो। गरीब, दरिद्र या निराश्रय, अभावग्रस्त, इनके बीच में भी कोई भेद नहीं करता, सब कुछ समभाव से देखता है। हम सभी एक साथ एक ही खेल में सम्मिलित हैं। हम सभी को एक दूसरे की आवश्यकता है क्योंकि वायरस का कोई विशेष पसंदीदा नहीं है। वह तो समस्त मानव जाति को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण तथा रंग के भेद के, बिना भेदभाव के समान रूप से प्रभावित करता है, सभी के लिए अटैक करता है। वह सामान्य रूप से प्रकृति के नियमों का पालन करता है। वह सभी के लिए जो प्रयोज्य है वही बहुतों के लिए भी प्रयोज्य है। कोरोना वायरस में निहित क्लेश, पीड़ा मानव को एकजुट होने का एक सुअवसर है। मुस्लिम हिंदुओं की, हिंदू सिखों की, शिया सुन्नियों की, ईरानी लोग, पैलेस्टीनियन या सीरियन लोगों की तथा अरब लोग ज्यूस की मदद करें, साथ में मिलकर के उनकी मदद करें, परोपकार करें। समस्वरता के साथ देखभाल करें, उनका ध्यान रखें। संभवतः हमारी मदर जो है अर्थ, वो हमको ये पाठ पढ़ाना चाहती है। संभवतः प्रकृति माँ ने, नेचर ने जो है, हमारी नेचर मदर ने प्रेम तथा स्नेह पूर्वक अपनी संतानों के लिए ये निर्णय या निश्चय किया है कि इस वायरस का प्रभाव उन्हें शांति, स्वाधीनता तथा सच्चे भ्रातृत्व की ओर ले जा सकता है, जिससे नई सामूहिक चेतना उदित हो, नई सामूहिक चेतना से आगे बढ़े। वर्तमान जीवन काल में हमें जो भौतिक शरीर धारण किए हैं, हमारे जो भौतिक शरीर हैं, ये तो केवल अस्थाई है। और हमें जो पाठ सीखना है
उसके लिए अनिवार्य है, जरूरी है। अगले जन्मों में हम जो आएंगे, अगले जन्म लेंगे, तो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे अन्य नए नए शरीर हमको धारण करने को मिलेंगे और उनको हम नए शरीर धारण करेंगे। हमारा वास्तविक स्व, ट्रू सेल्फ, कभी नहीं मरता और शाश्वत है, नित्य है। आत्मा को कुछ भी समाप्त या नष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक चीज ओम तत्सत से प्रकट और विकसित हुई है। अंततो गत्वा परीक्षणों और प्रशिक्षणों के माध्यम से हम अपने विकास के उस स्तर या स्थिति पर पहुंचेंगे जहाँ कि हम कुछ चुनाव कर सकेंगे, अपने बाबत कुछ चुनाव कर सकते हैं कि हमें क्या पुनः पृथ्वी पर वापस जाना है या फिर दूसरे स्वरूपों में सौर प्रणाली में जाना है या फिर आनंद या ध्यानी बुद्धा की स्थिति में बने रहकर विश्व पर प्रकाश की बौछार करते रहना है। हम अपने अंतर में आनंद की सजीव चिंगारी धारण किए हैं। हम भयानक अग्नि के बीच में स्थित हो सकते हैं। हम चाहे अग्नि के बीच में भी खड़े हो जाएं, जो हमारे भौतिक शरीर को जलाकर भस्म कर सकती है तथा हमारी सभी अधिकृत संपत्ति और अधिकार इनको भी छीन सकती है। परंतु हमारा दैवी चिंगारी जो है अग्नि के प्रकाश से भी अधिक तेज प्रकाश से चमकेगी और जीवन तथा प्रेम के दैवी बल अस्तित्वान ध्रुव पर अपनी विकास यात्रा सतत रखने के लिए नए भौतिक शरीर में लौटेगी। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है। हम पूछ सकते हैं कि सत्य तक पहुँचने के लिए हमें कितनी लंबी यात्रा करनी होगी। इस सत्य तक पहुँचने के लिए हमको कितनी लंबी यात्रा करना होगी, कितने जन्म लेना होंगे, तब कहीं जाकर के हम उस सत्य तक पहुँच सकेंगे। इसका उत्तर एंजिलस साइलेसियस की एक पोयम में, जो कि उन्होंने उनका जो थी 1624 to 77 उस समय वो थे, उन्होंने पोयम लिखी थी। उसका कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। वो इस तरह से है, हाउ फार फ्रॉम हियर टू हेवन। ये क्वेश्चन है, हाउ फार फ्रॉम हियर टू हेवन, यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक की दूरी कितनी है। आंसर भी वो देते हैं, नॉट फार माय फ्रेंड, a single inward step will all your journey end. यहाँ से स्वर्ग की दूरी कितनी है? अधिक दूर नहीं मेरे भाई। एक आंतरिक कदम तुम्हारी यात्रा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। हमारे यहाँ भी आप लोग शायद परिचित हों, माता आनंदमयी, जिनको कि अम्मा जी के नाम से पुकारते हैं, जो विश्व को गले लगाती थी, सारे विश्व से प्रेम करती थी बिना किसी भेदभाव के। उनके मठ के शिष्य अपनी कलाई पर एक कागज से बना हुआ ब्रेसलेट, एक कंकन जैसा वो पहनते थे, जिस पर लिखा होता था, बच्चों, ईश्वर हमारे अंतर की गहराई में है, गहराई में उपस्थित है। वह वहाँ पवित्र और अबोध प्रेम के रूप में निवास करता है।
वह वहाँ पर पवित्र और अबोध प्रेम, एक बालक का जो प्रेम होता है, बालक जिस तरह से सबको बिना किसी भेदभाव के सबको चाहता है, वह प्रेम, उस रूप में ईश्वर वहाँ पर निवास करता है। ऐसा ही जैसे ही हम ग्रीस में एक मंदिर है, जैसे ही कोई व्यक्ति ग्रीस में स्थित डेल्फी मंदिर में, जो अपनी भविष्यवाणी के लिए प्रसिद्ध है, प्रवेश करता है, तो उसके पिलर्स जो लगे हुए हैं, पिलर्स पर लिखा हुआ है, वहाँ पुरातन खंभों पर ये शब्द लिखे पाता है, मैन नो दाई सेल्फ, मैन नो दाई सेल्फ। सभी जगह ये इस तरह से इसका, जब हम ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, समय के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू अंटिल द एंड ऑफ टाइम, तो वह अपनी क्राइस्ट चेतना और अंतर्निहित चेतना की ओर इंगित करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, जो हम सभी के अंतर में विद्यमान है, परंतु अनुभूति करने और रहस्य खोलने या रहस्य प्रकट करने की आवश्यकता है। जब तक हम उसका रहस्य खुद ना खोल लेंगे, उसको प्रकट ना कर लेंगे, उसको हम नहीं पा सकेंगे। मानव जाति के लिए सर्वाधिक प्राचीन प्रार्थना जो हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उस मंत्र में भी देखें, मंत्र में हम जगत के निर्वाहक तथा संपोषक से स्तुति करते हैं कि वे हमारे लिए सूर्य में स्थित सच्चे आध्यात्मिक अस्तित्व, ट्रू स्पिरिचुअल बीइंग के चेहरे पर से जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा हटा दें, जो कि स्वर्णिम प्रकाश की तस्तरी से ढका हुआ है, उस पर्दे को थोड़ा सा हटा दें, जिससे कि हम सत्य के दर्शन कर सकें। इसी तरह की इसमें प्रार्थना की जाती है। गायत्री मंत्र में जो है यह कहा गया है कि हम सत्य के निकट तक पहुंच सकते हैं, सत्य के निकट तक पहुंच, उसके सत्य के पास तक पहुंच सकते हैं, परंतु सत्य को नहीं पा सकते। उसके कितने भी नज़दीक पास पहुंच जाएंगे, पर सत्य को नहीं पकड़ पाएंगे, पहुंच सकते। जब हम गहन ध्यान, डीप मेडिटेशन में शून्य, जीरो, नीरवता या वॉइड साइलेंस में एक ऐसी शांति के हम हमेशा के लिए उसमें खो जाना चाहेंगे, ऐसी शांति उस मेडिटेशन में मिलती है कि हम स्वयं को उसमें लीन कर देना चाहते हैं। वस्तुतः हम सत्य के समीप पहुंच रहे होते हैं, परंतु हमारी केंद्र क्यों नहीं पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं उसको पकड़ सकते हैं? हमारी केंद्रित या पोलरिटी की स्थिति हमें लक्ष्य तक पहुंचने से रोक देती है। ये देखिए, इस पे इन्होंने द मास्टर्स बुक जो है डॉक्टर बेसेंट ने लिखी हुई है, क्राइस्ट के, उसमें क्राइस्ट आखिरी तक मुक्ति के द्वार तक पहुंच गए, सत्य के नज़दीक उसके द्वार तक पहुंच गए, परंतु वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि सारी मानवता पीड़ा में भी डूबी हुई है, कष्ट भोग रही है, वहाँ से वो वापस आ गए कि जाकर के इनका मार्गदर्शन करेंगे। ये स्थिति होती है कि वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके नज़दीक तक पहुँच सकते हैं, परंतु वह को उसके दरवाजे से हम वापस लौट आते हैं। उसकी पीड़ा नहीं देखी जा सकती, मानवता के नाते उनकी मदद करने के लिए हम वापस लौट आते हैं। यही कहा जाता है कि इसीलिए सत्य तक हम उसके करीब तक पहुंच सकते हैं, परंतु उसको पकड़ नहीं सकते। इसी के लिए कहा गया है, द ड्रॉप हैज़ नॉट येट स्लिप्ड इनटू द ओशन,
The drop has not yet slipped into the ocean. हम अपनी विकास यात्रा के दौरान अंततः और अनिवार्य रूप से सत्य तक अवश्य पहुंचेंगे, अर्थात वह प्रबोधन, एनलाइटनमेंट या प्रज्ञान, विजडम की प्राप्ति है। सत्य जो है वही एनलाइटनमेंट उसको कहा जाता है, या उसको विजडम के नाम से भी जानते हैं, और इसे वास्तव में जानेंगे। महान सनत कुमार, आरोहण कर चुकी महिला मास्टर पान यिन, तारा और अवलोकितेश्वर हमारे प्रिय महान संरक्षक और सच्चे मित्रों ने विशाल त्याग और समर्पण के साथ यह निर्णय लिया है कि इस पृथ्वी ग्रह के आसपास के क्षेत्र में तब तक बने रहेंगे जब तक कि घास का प्रत्येक तिनका उस एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं कर लेता है, उस विजडम को प्राप्त नहीं कर लेता है। एक घास का तिनका भी, तब तक वो हमारे आसपास, पृथ्वी के आसपास ही बने रहेंगे और हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। दूसरे शब्दों में, हम सत्य को जब तक नहीं पा लेते, वो हमारे आसपास ही हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। अतः आइए हम अपने सभी भयों, सारे फियर्स को मिटाते हुए, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करते हुए, अपने आंतरिक विचारों को व्यक्त करते हुए और परम गुरुदेवों के सुगंधित अंगूर के बाग में प्रकाश के पात्र बनकर सत्य की दिशा में अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। हम जितने अधिक शुद्ध और पवित्र बनेंगे, सत्य के उतने ही समीप पहुँचेंगे। अपने विकास के आरंभ में जब हमने पदार्थ में क्रमशः नीचे उतरना आरंभ किया था, सोचिए, जब इस पृथ्वी के जब इसका पृथ्वी का या पृथ्वी को देखें, या इसको हम कहें, जब उस ब्रह्म से वो केवल प्रलय के बाद केवल एक ब्रह्म ही बचा था, वहाँ से फिर से जब शुरू हुआ है, शुरुआत हुई, तो हम सबसे पहले एलिमेंटेड किंगडम में आए थे। वहाँ से वो कह रहे हैं, जब विकास के आरंभ में हमने पदार्थ में क्रमशः नीचे उतरना आरंभ किया था। फर्स्ट जो है आपका ब्रह्म से, जो ब्रह्म सारे इसमें केवल ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था। वही ब्रह्म जो उसने अपना त्याग करके वो लिमिट के अंदर आया, सीमित किया आपने उसने, और फिर जब वो सीमित हुआ तो एक से अनेक हो, ये उसने कल्पना की। ये कल्पना क्या उसने सोचा है, अपना विचार किया कि मैं एक से अधिक हो जाऊं। तो वहीं से जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो पदार्थ में आता है, वहाँ से ही हमारी यात्रा शुरू होती है, और तब से यात्रा निरंतर चल रही है और आगे बढ़ रही है। तो वही कहते हैं, जब हमने पदार्थ में क्रमशः नीचे उतरना आरंभ किया था, उस समय हम शुद्ध और पारदर्शी थे। जैसे कि वो हर्मेट एक्सियम है, एक बतलाता है, एज अबव सो बिलो, जो ऊपर है वही नीचे भी है, वही सब में विस्तृत है। एक वही ब्रह्म जो है सारे इसमें विस्तृत है। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसका औरा को देखा जाए, शिशु के औरा को देखा जाए। वो औरा जो है सांसारिक मामलों में उलझने के पहले तक, जब तक कि वो बच्चा बड़ा हो करके सांसारिक मामलों में उलझता है, उसके पहले तक
प्रकाश की छटा बिखेरता रहता है। उसका ऑरा जो है ऐसा चमकीला रहता है, चमकता रहता है, जब तक कि वो इन सांसारिक चीज़ों में नहीं लिप्त होता है। यानी जो आरंभ में, स्टार्ट में, इनका कहने का मतलब ये है, आरंभ में जो एक शिशु की हालत होती है वही हम सबकी भी हालत रही है। और जैसे जैसे इस संसार के इसमें आए हमारा स्वरूप बिगड़ता गया, हमारा ऑरा जो है उतना ही डिम होता गया। यह जीवन केवल क्षणभंगुर है। क्या हमें इस सत्य को स्वीकार करने का साहस है? हमारा जीवन जो है क्षणभंगुर है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, हमारी मृत्यु हो सकती है, पर क्या हम इसको स्वीकार करते हैं? इतना साहस है कि हम इसको स्वीकार कर सकें? नहीं। हमारा अहंकार, ईगो जो है वो ऊपर आ गए, उसको दबाने के, जो विचार है उसको दबाने की कोशिश करेगा, मृत्यु से बचने की कोशिश करेगा ईगो, जबकि मृत्यु तो हमारी एक नेचुरल है। यह जीवन क्षणभंगुर है। क्या हमें इस सत्य को स्वीकार करने का साहस है? नहीं। हमारा अहंकार हमारे भौतिक स्वरूपों पर चढ़ जाएगा और उसे जाने देने का अनिच्छुक हो जाएगा, उसको जाने नहीं देना चाहता। परंतु आखिर वो जाएगा कहाँ? वह आनंद, आरामदायक शांति और संरक्षण में जाएगा। मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा वो? मृत्यु जो होगी तो वह आनंद, आरामदायक शांति और संरक्षण में जाएगा। हमें आराम दे तथा अवर्णीय गहन करुणा के साथ देवी हाथों में, उस ईश्वर के हाथों में ले जाएगा। हमें छोटे बच्चों की तरह स्नेहपूर्वक झूले में झुलाया जाएगा, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर की संतान हैं। और जब हम अपने पृथ्वी तल से रवाना होंगे, हम मात्र अपने घर को लौट रहे होंगे। हमारा घर यहाँ नहीं, हमारा घर वहाँ पर है, लौट रहे होंगे। इसलिए जो मृत्यु का भय हमें चिंता दे रहेगा। हमेशा हम चिंता में रहते हैं कि कब मृत्यु हो जाए, कब होने वाली है। चिंता क्यों करना? उस मृत्यु की चिंता क्यों करना? क्योंकि जब हम जाएंगे तो हम अपने घर को वापस जाएंगे। यहाँ हमारा घर नहीं है, यहाँ तो हम एक यात्री बन करके आए हुए हैं, यात्री हमें, तो वहाँ पर हमारा घर है, हमको वहीं पर अपने घर लौटेंगे। इसलिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हमारी नियति या भाग्य जो इस जन्म का था वो पूर्ण हो चुकी है, और हम अपनी सभी शंकाओं और भय को पीछे छोड़कर वहाँ जा सकते हैं। पिछली शताब्दी की विख्यात अंग्रेज थियोसॉफिस्ट क्लेरा कार्ड जब अपने मित्रों से और सेवाश्रमों में रोगियों से भेंट करने जाती थी, तब रोग शैया पर पड़े रोगियों के प्रति हमेशा अत्यधिक धनात्मक मुद्रा में होती थी। जब कोई रोगी कहता था मैं मर रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है, तो वह जवाब देती थी हाउ वंडरफुल। कहती थी इतना आश्चर्यजनक है, आप कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो रही है, इतना आश्चर्यजनक है। हम अपने घर को जा रहे हैं, हमारी मृत्यु नहीं हो रही है। एलिस बेली की एक पुस्तक है, डेथ द ग्रेट एडवेंचर। द ग्रेट एडवेंचर, और वस्तुतः मृत्यु की दूसरी ओर जाना भी एक बड़ा साहसिक कार्य है। मृत्यु की दूसरी ओर जाना भी एक बड़ा साहसिक कार्य है। क्या साहसिक कार्य है? क्यों साहसिक कार्य कहा गया है? क्योंकि हमने सारी
जब से जन्म लिया अभी तक जो कुछ भी कलेक्ट किया, जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी हमने धन संपत्ति प्रॉपर्टी अपनी इकट्ठी की है, परिवार को बनाया है, पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र है, स्नेहीजन है, सभी हमारे हैं, इन सब को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इन सब को छोड़ के जाना, साथ में कुछ नहीं जाएगा, एक साहसिक कार्य नहीं तो और क्या है। तो इसलिए कहा गया है साहसिक कार्य है। यथार्थतः कल्पना कीजिए, जब हमारी मृत्यु के बाद जब हम वहाँ जाएंगे, जब हमारी उन प्रेमी जनों से मुलाकात होगी जिनकी हमसे पहले मृत्यु हो चुकी है, तथा शांतिपूर्ण आनंद की स्थितियाँ प्राप्त होंगी। इस ग्रह पृथ्वी पर हमारे जीवन के दौरान जो कुछ गलत फहमियाँ वगैरह हुई हैं, जो कुछ हमसे गलतियाँ वगैरह हुई हैं, वह पूर्णतः भूल चुके होंगे। और अंत में अनुभव होता है, वहाँ पर जाकर के हम अनुभव ये करेंगे कि हम सब एक हैं, हमें कोई भेद नहीं है, हमें कोई अंतर नहीं है, और सच्चे आत्मीय साथी हैं, सभी मित्र हैं। कहा गया है कि जब हम अपना भौतिक शरीर छोड़ते हैं तो सभी एक दूसरे से परिचित होते हैं। वहाँ पर जाके देखते हैं, जो लोग मिलते हैं सब हम एक दूसरे के, ऐसा लगता है सब परिचित है। कभी कभी वो उसका जो कभी कभी ऐसा होता है, जब मृत्यु का समय आता है उस समय थोड़ा सा हमको फ्लैश इस तरह से दिखाई दे जाता है किसी किसी के लिए कि उस पार क्या है। तो वही कहते हैं, कभी कभी हमारे जीवन के पश्चात की झलकियाँ मृत्यु के समीप के समय के दौरान दिखाई पड़ जाती हैं, परंतु यह बेले ही होता, बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि यह ज्ञान भौतिक शरीर के विघटन से पूर्व ही भेद खोल दे। बहुत ही रेयर केस में होता है, किसी किसी के लिए ही, कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, किससे हम मिलने वाले हैं, क्या वहाँ पर घटनाएं हैं, वो सारी चीज़ें ये दिखाई दे जाती हैं किसी किसी को। तो उसी की बाबत उन्होंने कहा है। HP भी इससे पूर्णतः सहमत थी कि प्रकृति के रहस्य केवल उनके लिए ही प्रकट होते हैं जिनका कि हृदय पवित्र हो, और एक सच्चा ऑकल्टिस्ट प्रकृति का एक पवित्र हितकारी बल है। जैसा कि एक महान लामा ने भी कहा था, किसी व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है यदि वह हानि करना हो, किसी को दूसरों को हानि ना पहुंचाता हो, उस पर विश्वास किया जा सकता है। सच्ची अहानिकारिता सर्वाधिक प्रबल और विद्वतापूर्ण समझ है और करुणा को धारण करती है, यहाँ तक कि उसके बच्चों के हत्यारे के प्रति भी। ये करुणा ऐसी होती है उस स्थिति में पहुँच करके कि कोई हमारे वो कष्ट में है, वो भले हमारे बच्चों के हत्यारा भले हो, पर ये करुणा उस तरफ जाएगी और उसकी मदद करेगी। वो उस समय उसका भाव छूट जाएगा कि इसने हमारे बच्चों की हत्या की हुई है। ये स्थिति वहाँ तक जाके पहुँचती है। हम इस जगत में लोगों की दरिद्रता, गरीबी तथा अज्ञानता को देखते हुए यह आवश्यक रूप से ही अनुभव करें कि हम कितने भाग्यशाली हैं तथा हमें कितने विशेष अधिकार प्राप्त हैं, यह जानकर कि हमारा आंतरिक स्व, हमारा इनर सेल्फ शाश्वत है, नित्य है, और हम वे चमकती हुई चिंगारियाँ हैं जो उस महान ईश्वरीय ज्योति से निकली हुई है। वह ज्योति
वह ज्योति एक ऐसी ज्योति है जो किसी को जलाती नहीं। वो ईश्वरीय ज्योति जो है, जिससे हम निकले हुए हैं, जिसकी चिंगारियाँ हैं, वह ऐसी ज्योति है जो किसी को जलाती नहीं। हम इस ब्रह्मांड की चेतना के साकार रूप है, मूर्त रूप है, जो शाश्वत जीवन जीते हैं। वी आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस दैट लिव्स लाइफ इटर्नल। इस कारण से ही यह इतना अधिक महत्वपूर्ण है। ये हमने देख लिया, जान लिया कि मृत्यु के पश्चात हम किस स्थिति में होते हैं। हम अपने घर पहुंच रहे होते हैं, वहाँ में सारे आत्मीय जन मिल जाते हैं, हमारी शांति को पहुंचते हैं। इसी चीज़ों को जान करके इस कारण हम अपने आप को समझते हैं कि हम इस कारण से यह इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि ये चीज़ें कि चिरस्थायी प्रज्ञान की जानकारी का स्वतंत्रतापूर्वक रहस्य को खोल रहा है। ये रहस्य हम लोगों को इस प्रज्ञान से, थियोसॉफी से मिलता है। ये थियोसॉफी के लिटरेचर में पढ़े तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमको मिलती है। तो इसी चीज़ों को लेकर के, जिससे कि सभी व्यक्तियों को बड़ी आशा और राहत मिलती है। हमारा जो भय है, हमारा जो सबसे बड़ा भय जो हमको लगता है, वो मृत्यु से है। और जब हम यह सारी चीज़ें, ये रहस्य को वहाँ से जब हम जान लेते हैं, तो हमारा भय समाप्त हो जाता है, हमें राहत मिलती है, हमारी आशाएं बनती हैं। इसी चीज़ों को लेकर के हम जब भी अपने मित्रों के बीच में, जनरल पब्लिक के बीच में जहाँ भी अवसर मिलता है, उनसे इस बात की चर्चा करें। अपने वार्तालाप में इन चर्चाओं में इन चीज़ों को लाएं और पुनर्जन्म की बातें बताएं। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस चीज़ों को जो रहस्य हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं, उस रहस्य को हम सब में विस्तारित करें, सबके बीच में चर्चा में लाएं, ताकि दूसरे लोगों को भी जो राहत मिली है, वो राहत सबको मिल सके, उनका भय दूर हो सके। तो फिर अंत में आइए इस अवसर पर, हमारे अड्या डे के अवसर पर, हम यहाँ पर कुछ संकल्पना करें, कुछ संकल्प लें। हम सभी विनम्रता और समर्पण के साथ सभी संभावित अवसरों पर उन महान गुरुदेवों के साथ मिलकर घास के तिनके के सहित सभी प्राणियों को पोषण प्रदान कर पुष्ट करें और विकास की प्रक्रिया को सुगम बनाएं, जिससे कि इस पृथ्वी पर शीघ्र ही सत्य और शांति की विजय हो। Let us with humility and dedication on every possible occasion aid the great ones to nurture the blades of the grass, facilitating the evolutionary process so that the truth and peace can prevail on this earth. Thank you. ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ವಂದನೆಗಳು. ಇದುವರೆಗೂ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಟ್ರೂತ್, ಸತ್ಯ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಕೋರಿ ಅವರು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿಡುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರು
ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್? ನಮ್ಮ ಎಂಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನೋ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಎಬೌವ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಟ್ರೂತ್, ಸತ್ಯನೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹುದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ, ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಇಣಿಕಿ ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾವು 3 ದಿನದಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಯ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಹೀಗಾದರೆ ಹೇಗೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತೆ. ಆ ಭಯವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಎಲ್ಲ ಭಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಯ ಯಾವುದು? ಮೃತ್ಯು ಭಯ. ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಮೃತ್ಯುಗೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೃತ್ಯುಗೆ ಹೆದರದೆ ಬದುಕೋ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಸತ್ಯ. ಥಿಯಾಸಫಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಮೃತ್ಯುಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಆತ, ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಸುಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿಥಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಲು, ತಾನು ಸತ್ತಾಗ ಬರೆದಿಟ್ಟಂತೆ ವಿಲ್ಲು ನನಗೆ ಮಾಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರನೇ ತಿಥಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವರು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋ ಆಪತ್ತುಗಳು ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಿ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಪತ್ತುಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಯಿತು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರು. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೊರೋನಾನೇ ಕಾರಣ. ಆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಒಳಗಿನ ಇನ್ನರ್ ಜರ್ನಿ, ಇನ್ನರ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು 2-3 ದಿನದಿಂದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಳಗೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳಗಿನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಬಹುದು
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜಲಚರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತವೆ. ಅವು ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭೌತಿಕ ಶರೀರ, ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇರುವುದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್, ಆತ್ಮದ ವಾಹನ. ಈ ವಾಹನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ವಾಹನನೇ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಶರೀರ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಯಿತು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಜನ್ಮ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆತ್ಮದ ಸಂಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ, ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ವ್ಯಾಮೋಹನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸತ್ತ ನಂತರ ಸಾಯುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಾ ಅವರು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಮೃತ್ಯುಶೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಮೃತ್ಯು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಾ? ಮೃತ್ಯು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮೃತ್ಯು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷನೋ ದುಃಖನೋ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿ ಹೋಗಿರುವವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಮನೆ, ಆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟ್ ಆದ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಥಿಯಾಸಫಿಸ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಈ ಥಿಯಾಸಫಿಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಥಿಯಾಸಫಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರು ಅವರು
ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನು? ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಆ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಾಲದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.